हेलो स्टूडेंट एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। और हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट क्लास, आई थिंक क्लास नंबर 3। और इससे पहली क्लास में हमने पॉइंट ग्रुप देखा था और उससे पहली क्लास में हमने सिमेट्री, पहले हमने सिमेट्री देखी थी। सिमेट्री के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना देखा था बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय वेस्पर थ्योरी। ओके, और आज फिर हमने पॉइंट ग्रुप निकालना देखा। पॉइंट ग्रुप के मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे अपलोड कर दिए थे, आप उन क्वेश्चंस को देख लेना। क्लास नंबर 2 में है ग्रुप थ्योरी 02 में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन पार्ट। ओके, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल Happy Independence Day, and this is our 74th Independence Day. So please be focused on your work, be punctual, and be hard worker. Okay, then let us start. Okay, guys. So today's topic is 3N character, 3N character of symmetry elements. Symmetry elements by unshifted atoms. अभी हम देखेंगे क्या होता है 3N कैरेक्टर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने अनशिफ्टेड एटम देख लिया था। कैसे पता करते हैं अनशिफ्टेड एटम? बहुत ही सिंपल है। लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड, दिस इज योर pyridine, आई हैव दिस pyridine, so this have 11 elements, 11 elements, and this have a C2V point group, so E C2 and sigma V are the symmetry elements in this point group. Then if you will apply E, then all the 11 elements will unshifted. If you will apply C2 will apply like this, then 1 2 and 1 hydrogen 3 atom will unshift. If sigma V, then again 3 atom unshift. If sigma V prime, that will be your plane of paper, so again 11 atom unshifted. So these are the unshifted atoms. Okay, now how these unshifted atoms behave in 3 dimensional, how these unshifted atoms behave in 3 dimension. For that I need to calculate 3N character of a symmetry element. Okay, so how to calculate 3N character of a symmetry element? So first let's say for CN axis, let's say for CN axis, for CN axis, अब मुझे CN axis के लिए 3N character डिटरमाइन करना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, CNK, where N is the order and K how many times I am applying this CN axis. Then the formula is 1 plus 2 cos 2 pi K by N. This is the formula. This is the formula. Let's say now you want to find C11. You want to find C11. Then this will be 1 plus 2 cos 2 pi. K का वैल्यू 1 होगा, N का वैल्यू 1 होगा। cos 2 pi. cos 2 pi is, so this is your cos ray. This is your cos ray. Okay, cos wave भी है। Okay, cos wave भी है तो cos 0, cos pi by 2, cos pi, cos 3 pi by 2 and cos 2 pi. So cos 2 pi का वैल्यू है +1. So if you calculate this value, then you will get 1 plus cos 2 pi का वैल्यू +1, then this will be 2. So the 3N character is 3. Okay, this is not so important. C1 is not so important. Okay, now C2, 3N character for C2 1. Let's say C2 1. Then again 1 plus 2 cos 2 pi. K is 1 by N is 2. 2 से 2 cancel. Cos pi. Cos pi is what? Cos 0, cos pi by 2, cos pi. This is cos pi. That is -1. So this will be 1 minus 2, and that is -1. So the 3N character for C21 is -1. For 3N character for C21 is -1. Let's see now for C22. Now I am applying C2 axis 2 times. C2 axis 2 times, then it will be 1 plus 2 cos 2 pi
k का वैल्यू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देन दिस इज 2 पाई, cos 2 पाई अगेन, cos 2 पाई is plus 1, then this will be 1 plus 2, that is 3. Okay, you can find like this. Got it? Now for C3 axis, for us C2 1 is important, now C3 1 is also important. For C3 1, okay, just apply 1 plus 2 cos 2 pi, k का वैल्यू 1 अपॉन n is 3, 2 pi by 3, 2 pi by 3, 2 pi by 3 means 360 by 3 ना, so 120. Okay, this is 180, हाँ 120. So याद आएगा 1 plus 2 cos 120. And what is cos 120? Cos 120 को I can write cos 120 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 plus 30. And what is cos 90 plus theta? Cos 90 plus theta is nothing but sin theta. If so ये प्लस होगा या माइनस होगा वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा. तो देखो कोस के लिए बात कर रहा हूँ, कोस के लिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है. साइन वाले केस में ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस होता है. अब मेरे पास है cos 90 plus 30, cos 90 plus 30 इस क्वाड्रेंट में आएगा तो दैट इज माइनस, सो दिस विल बी माइनस साइन थीटा एंड साइन इज व्हाट हियर 30, सो माइनस साइन 30 एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, सो दैट इज माइनस 1/2. सो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट 1 minus 2 into 1/2. So 2 से 2 cancel, that is 1 minus 1 is equal to 0. Means the 3n character of C31 is 0. For C3n is 0. Now you can find for any axis, you can find for any proper axis by this formula. You can find for any proper axis by this formula. Got it? You can also find C4. But for us, C2 is important, C3 is important, C4 is not more important. But if you want to find C4, then C4 again, C4 1, that is 1 plus 2 cos 2 by k is again 1, so 2 pi by 4, so pi by 2, cos pi by 2 is what? 0, so this will be 0, means C4 1 is 1. Okay, now the character for C2 is minus 1, C3 is 0 and C4 is 1. These are the 3n characters. These are the 3n characters. Or you can find these by the vector diagram. By the vector diagram. How you can find? Just calculate by vector diagram. Okay. Let's say this is your axis. This is your axis. This is x-axis. This is y-axis, and this is z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. Now you are applying C2. Let's say you want to find for C2. Now you are applying C2. Okay, on x, y, and z. Then you will get, if you will applying C2 on x, if you will applying C2 on x, then what will happen? C2 on, let's say you are applying this axis from z axis. Let's wait. ओके, सो मोस्टली जो आप एक्सिस अप्लाई करते हो वो जेड एक्सिस से करते हो. कौन से एक्सिस से करते हो? जेड एक्सिस. लेट्स से यू आर अप्लाइंग फ्रॉम जेड एक्सिस ओनली. Let's say you are applying from z axis. When you will apply from z axis, then okay. So how you can understand? Just wait a second. Okay, guys. So here's we are. So let's say this is your x axis and this is your y axis. So x axis and y axis are perpendicular to each other. And this is your z axis, let's say. Okay, now if this is your x positive, then over here your x negative. If your y positive is over there, then y negative is over there. Okay, now you are applying C2 axis from this side. If you are applying C2 axis from this side, so what will happen? You will apply C2 axis, so it will go like this. Means y axis come to minus y and x axis go to minus z, and z axis remains same. Got it? And z axis remains same.
means what's happening over here, if you are applying C2, then x become minus x, y become minus y, and z remains same. Got it? Okay. So the character for x is minus 1, the character for y, 3 and character for y is minus 1, and 3 and character for z is plus 1. So 1 cancel, then this is finally you will get the 3 and character is minus 1. So you can find 3 and character by your diagram, वेक्टर डायग्राम. गॉट इट? सी यहाँ पे आप C2 एक्सिस अप्लाई कर रहे हो, आप देखोगे C2 एक्सिस आपका जनरली आप 3n कैरेक्टर है क्या? 3n कैरेक्टर है कि 3n डायमेंशन में जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो कंपोनेंट को किस टाइप से रोटेट कर रहा है. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका C2. ओके. अब अगर मैं यहीं पे C3 की बात करूं, किसकी बात करूं? C3 x y z. ओके. ध्यान दो. अगर एक्सिस अपोजिट एक्सिस में जाए, अगर एक्सिस अपोजिट एक्सिस में जाए, लेट्स से एक्सिस गोइंग टू माइनस एक्स, देन वी विल टेक -1. इफ एक्सिस आर इंटरचेंज, मींस एक्स इज इंटरचेंजिंग बाय y, then this will be 0. And if x is going somewhere और x और y सम, अगर कोई एक्सिस कहीं भी और जा रही है, मीन्स इंटरचेंज नहीं हो रही है माइनस एक्स में या y माइनस वाई में इंटरचेंज नहीं हो रही, तो उसके लिए 0 लेते हैं. अगर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है तो उसके लिए +1 लेते हैं. कोई दिक्कत? ओके. लेट अस अंडरस्टैंड इट. Okay, now I am taking C3. When you will apply C3, so this will you are applying from Z axis. You are applying for Z axis, na? C3. Okay. Just wait. So for X axis, okay, man, I am going to understand you. For C3. So guys, I have made a big joke. Just wait a second. Okay, for C3, just remember for C3, CN character is 3n character is 0. We will come over here after some time. Okay, थोड़ी देर बाद में हम इसके ऊपर आते हैं. ठीक है ना? C3 के ऊपर यहाँ तक समझना है. अब मैं बात करता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की. प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे कोई सी भी होगी, उसके लिए 3n कैरेक्टर हमेशा 1 होगा. कैसे? लेट्स से मैं सिग्मा v ही अप्लाई कर रहा हूँ. मैं किस सिग्मा v अप्लाई कर रहा हूँ? x y z के ऊपर. मैं सिग्मा v अप्लाई कर रहा हूँ x y z के ऊपर. जो सिग्मा v होता है वो बताओ मुझे कहाँ से लगता है? सिग्मा v लगता है कहाँ से? सिग्मा v लगता है एक प्लेन से. लेट्स से आई एम अप्लाइंग सिग्मा x y. सो दिस इज अप्लाइंग फ्रॉम x y plane. मीन्स x y plane remains same, means +1 and +1, and z will change -1, so it will give 1. If this is yz, then y and z will be +1 and this is -1, then again +1. If this is zx, then x and z will be +1 and this is -1, so this is again +1, means sigma v always +1. Likewise sigma h and sigma d we all also give 3n vector is 1. So finally and I, if I am applying I over here, let's say I have I operator over here, then what it will do? It will reflect z over here, means z will go over here, okay, in negative direction, and x will go in this negative direction, and y will go in this negative direction, means x is also -1, y is also -1, z is also -1, so that is -3. So the 3n character for I, 3n character for inversion center is -3. If you are applying E, E will what will do? E कुछ नहीं करेगा. E will remains unchanged. You will left these axes remains unchanged. तो ये unchanged रहेगा, तो सबके लिए +1. So this will be +3. Means now you got all the 3n character. Now you got all the 3n character, and these 3n characters are very important. In study of applications. Okay, for C2 axis is what? -1. For C3 axis is 0, and for C4 axis is 1, and for sigma v or sigma d or sigma h, इन सब के लिए कितना होगा?
+1 होगा और ये भी +1 है, और I के लिए -3 और E के लिए 3। ये 3n कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, 3n कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो आप ध्यान से रखो, ध्यान दो इसमें, ठीक है ना, नोट कर लो इसे। ठीक है ना, तो आपको 3n कैरेक्टर समझ में आया। ओके, आफ्टर 3n कैरेक्टर नाउ what is reducible and irreducible representation? So we are not going through the matrices over here, we are not going through the matrices over here। हम बिना मैट्रिक्स के यहाँ पे देखेंगे, तो हम जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं क्या होता है reducible irreducible। we are not going to construct the व्हाट इज दैट कैरेक्टर टेबल। हम कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वो सब हम एडवांस पार्ट में करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा B2A बैच होगा उसमें हम ये सब करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस हम कैरेक्टर टेबल लेंगे और उससे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। सो व्हाट इज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देन? सो व्हाट इज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन? सो जस्ट टेक अ सेकंड एंड टेल मी। ओके, let me tell you what is irreducible and reducible representation. So reducible and irreducible representation, and this is important. Reducible and irreducible representations are important. So what is irreducible representation first? Okay, a set of character developed by a set of symmetrical operation in a point group or in a molecule by choosing proper basis called irreducible representation। means आपको यहाँ पे अब basis समझना होगा क्या होता है। what is basis? means आप किसे यहाँ पे रेफरेंस मान के आप कह सकते हो, किसे आप अपना टारगेट मान के और यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स लगा रहे हो, दैट इज योर बेसिस, ठीक है ना। जनरली इन जनरल लैंग्वेज, so let's say you have water molecule, now you are applying your all the operation। let's say you are applying C2 axis and you are calculating the unsifted atom, so you are calculating the property of atoms, then your bases are atom। you can take the basis to OH bond may also be your बेसिस सेट, ठीक है ना। सो बेसिस आपका डिफरेंट बेसिस के लिए आपके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और जनरली हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे सबके लिए डिटरमाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उनके लिए कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम आपको कैरेक्टर टेबल प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर टेबल आपको दी होती है, वहाँ पे आपको कैरेक्टर टेबल जनरेट नहीं करनी होती। तो कैरेक्टर जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो हम हमेशा कैरेक्टर टेबल से ही लेंगे। ओके, गॉट इट? आया समझ में? ओके, सो आई एम टेकिंग वाटर मॉलिक्यूल। लेट्स से दिस इज योर water molecule, and water molecule have your C2B point group. What point group is have? C2B point group, and the elements are over here. Elements are E, C2, sigma V and sigma V prime. Now I am going to construct the or calculate the or determine the reducible representation for that. For that I need bases. So let's say bases are atom. So I will write tau atom. So for reducible and irreducible representation, I'll use a letter that is tau. I'll use a symbol that is tau. Okay, so tau for this is, so you will write over here the unsifted atoms or unchanged atom. So when you will apply E, there are 3 atoms. When you will apply E, so these 3 atoms will unchange. So over here you will write E3। ओके, अगर आप C2 अप्लाई करोगे, अब देखो आप C2 अप्लाई कर रहे हो तो कितने एटम अनचेंज रहेंगे? ओनली एक एटम अनचेंज या अनशिफ्ट रहेगा, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। सिग्मा V अप्लाई करोगे तब भी एक एटम अनशिफ्टेड होगा, सिग्मा V प्राइम करोगे तब तीनों एटम अनशिफ्टेड होंगे, तो ये आएगा आपका टो एटम।
समझ में आया कुछ? ओके, जब आप टू एटम निकालते हो या आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखते हो, अगर मैं पूछूं कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन, सो डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसकी डायमेंशन क्या है? तो देखो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन होती है मॉलिक्यूल पे आइडेंटिटी को ऑपरेट करके, मॉलिक्यूल के जब आप आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हो जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन आता है, मॉलिक्यूल पे आइडेंटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन आता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन. तो डायमेंशन फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन इज 3 over here. Got it? Okay. Now this is the these are the reducible representation. Now you got it, how to calculate the reducible representation. So over here you will just write unshifted atoms. So you can find unshifted atom easily, I know. Now let's say basis set. Let's say basis set is OH bond. Let's say basis set is OH bond. Then for OH, you will get what? When you will apply E, there are two OH bond. When you will apply E, both OH bond will unshifted. Okay. When you will apply C2, both will exchange to each other, means both will shift. So for this is 0 and sigma V for this is also 0 and for this is 2. So this is the reducible representation, or you can say reducible form, or just unshifted atoms representation for OH bases. Got it? So basis आपको वो देगा, basis आपको वो देगा, आपको just determine करना है, ठीक है ना? अगर basis ना होती हो तो just आप atom को ही basis मानोगे. Got it? ठीक है ना? ओके, अब देखो आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया. अब हम देखेंगे 3n रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एटम और अ मॉलिक्यूल. 3n रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय tau 3n. व्हाट इज 3n representation? What is 3n representation? So this is nothing but the three-dimensional representation of a molecule in matrix form. 3n representation of a molecule in matrix form. How you calculate it? So this is very simple. Let's say I am just again calculating for water molecule. C2V is the point group. You will write over here. Now E C2 sigma V prime. Okay. So the unshifted atom. Let's say you are taking atoms. So atom. Okay. Unshifted atom 3. Unshifted atom 1, unshifted atom 1, unshifted atom 3. Now how will calculate 3n, tau 3n representation? So this is very simple. Just multiply the 3n character of the element with the रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. फिर से समझो, अगर आपको 3n रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, या आप कह दो 3n रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो उसके लिए आप जस्ट इनके जो 3n कैरेक्टर होते हैं जो अपने पहले निकालते थे, जैसे इसका 3n कैरेक्टर 3 आया था, इसका 3n कैरेक्टर माइनस बनाया था, इसका 1 आया था, इसका 1 आया था, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, इनकी जस्ट मल्टीप्लाई करनी है इनमें और लिखना है. तो 3 3 is 9, 1 into 1 -1 and then 1 then 3. So this is the 3n representation. This is the 3n representation of water molecule. This is the three-dimensional representation of water molecule. So tau 3n is nothing but unchanged atoms, means unshifted atom multiplied by 3n character. Okay, I am taking a different molecule, that is PCl4Br. Next molecule is PCl4Br, where Br is placed on the equatorial place. Okay, so PT, that is PTCl. Cl, Br is over here and this is Cl and this is Cl. This is looking like this. Okay, got it. So what will be the point group for this? Just calculate the point group for this. Okay, let me start. I can calculate by that diagram.
मीन्स ये लीनियर है नहीं है वो सब देख के, या मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो दोनों तरह से कैलकुलेट करता हूँ। पहले देखते हैं लीनियर है या नहीं है। नहीं जी लीनियर नहीं है। फिर देखता हूँ क्या टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कोई सिमेट्री है, नहीं है जी। उससे नीचे आता हूँ, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे क्या कोई प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो बी आर शिफ्ट हो जाएगा इससे, तो C3 इसमें एक्सिस नहीं होगी। क्या C2 होगी, हाँ जी इसमें एक C2 होगी। अगर आप एक C2 एक्सिस ऐसे पास करोगे तो वो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और ये दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, तो इसमें एक C2 एक्सिस है। ओके C2 एक्सिस है। क्या इसके परपेंडिकुलर 2C2 है, नहीं जिसमें कोई 2C2 नहीं है। अगर 2C2 नहीं है, क्या इसमें सिग्मा H है, तो मैं देखूंगा क्या इसमें सिग्मा एच है। सिग्मा एच क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन। क्या इसके कोई परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा, नहीं बेयर यहाँ पे आएगा, नहीं कोई परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है। अगर इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन नहीं है, यानी कि इसमें सिग्मा एच भी नहीं है, क्या इसमें सिग्मा भी है, 2 सिग्मा भी है, हाँ जी इसमें 2 सिग्मा भी है, ठीक है ना। अगर इसमें 2 सिग्मा भी है तो ये पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2C, ठीक है ना। और वैसे आपको निकालना है तो एक्सिस आपने लगाई C2 और 2 सिग्मा भी प्लेन लग रहे हैं इसमें, ठीक है ना। कौन कौन से 2 सिग्मा भी लग रहे हैं दिख तो रहे ना। एक तो देखो ये वाला सिग्मा भी लगेगा जो यहां से होके जाएगा, ये वाला सिग्मा भी, ये सिग्मा भी जो इन दोनों को अनशिफ्टेड करेगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे। दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर ये वाला लगेगा, ठीक है ना। उसमें ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे और सब अनशिफ्टेड रहेंगे, तो दैट इज सिग्मा V प्राइम एंड दिस इज सिग्मा V, ये रहेगा। तो C2V पॉइंट ग्रुप है, ओके C2V पॉइंट ग्रुप है। कौन सा पॉइंट ग्रुप है, C2V। देन E होगा, C2 होगा, सिग्मा V होगा और V प्राइम होगा। ओके अब जब मैं E लगाऊंगा तो कितने एटम इसमें, 1 2 3 4 5 6 एटम है, 6 के 6 अनशिफ्टेड रहेंगे। जब मैं इसमें C2 लगाऊंगा तो ये और ये 2 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे। और जब मैं इसमें सिग्मा V लगाऊंगा, व्हाट इज सिग्मा V, सिग्मा V अप्लाइंग लाइक दिस 1 2 3 4 विल अनशिफ्टेड, 4 विल अनशिफ्टेड, समझ में आ रहा है ना। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और एक अबव द प्लेन, एक अबव द प्लेन मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऐसे है। और जब आप ये वाला प्लेन लगाओगे तो ये दोनों तो शिफ्ट होंगे, बट ये आपका शिफ्ट नहीं होंगे, तो इसमें अनशिफ्टेड कितने हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं कौन सा प्लेन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, मैं प्लेन लगा रहा हूँ, ये प्लेन लगा रहा हूँ। तो इसमें जब आप ये प्लेन लगाओगे तो एक तो ये एटम आएगा, एक वो पीछे वाला Cl आएगा, एक ये Cl आएगा, एक Pt, यानी कि 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है ना। अब जब सिग्मा V प्राइम लगाओगे ये वाला, तो इसमें 1 2 3 4 आएंगे, समझ में आया ना। ओके तो ये आएगा आपका T तो एटम, ठीक है ना। अब आपको निकालना है टाउ 3n निकालना है। ओके जस्ट मल्टीप्लाई द करेक्टर बाय दीज, सो करेक्टर इज 3n करेक्टर ऑफ E इज 3 6 18 and -1, so -2 and 4 and 4. So these are the 3n representation. These are the 3n representation of the given molecule. These are the 3n representation of the given molecule. So now you can find the 3n representation of the molecule. Got it? ठीक है ना, ऐसे से। ओके नोट कर लो इसे, पॉज करके नोट कर लो। ओके मैं आगे चलता हूँ। ओके अब हमें आगे नीड होती है कैरेक्टर टेबल की, इससे आगे हमें जरूरत पड़ेगी कैरेक्टर टेबल की। सो कैरेक्टर टेबल मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो कोई भी अगर आपके पास इनऑर्गेनिक की कोई भी बुक है, कोई भी अच्छी बुक है, या आप ऐसा कह लो कोई भी आपके पास ग्रुप थ्योरी की कोई भी बुक है, तो उनमें सबसे पीछे आपको कैरेक्टर टेबल देखने को मिलती है। कैरेक्टर टेबल सब में दी होती है। अगर आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में भी आपको कैरेक्टर टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बिना कैरेक्टर टेबल के वो कभी नहीं देगा। क्या होती है कैरेक्टर टेबल, मैं एक बार आपको दिखा दूं जस्ट। सो देखो अगर आपको विजिबल हो तो ये आपका हुई का बुक है, ठीक है ना। हुई का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है, अच्छा बुक है। इसमें भी पीछे आपका कैरेक्टर टेबल दी गई है, ये इस चैप्टर में अपेंडिक्स में दिया गया है कैरेक्टर टेबल। पेज नंबर इज 717, ठीक है ना। 717 इज पेज नंबर 717 और these are the character table. As you can see, this is the character table for C1. This is the character table of for CI point group. This is for C2, C3, C4 and D2 point group, and for D3 point group. Now, as you can see here, this is for S4, S6,
C3V, C2V. So these are your important character table जो आपकी यूज आने वाले हैं. C2V point group, C3V point group, C4V point group, okay, C5V point group, 6V point group, D2H point group. So C2V, C3V, D2H point group, D3H point group. फिर आपका D4H भी दिया गया बट इम्पोर्टेंट इतना नहीं है. D5H भी दिया, D6H भी दिया, D8H भी दिया. तो सबका कैरेक्टर टेबल यहाँ आपको अच्छे से दे रखा है. अब आप इस कैरेक्टर टेबल को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा होता क्या है कैरेक्टर टेबल, ठीक है ना, थोड़ी सी देर में. बट आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो देखो कैरेक्टर टेबल के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो कैरेक्टर टेबल को 1 2 3 4 पार्ट में टोटल कैरेक्टर टेबल को डिवाइड किया गया है. 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं हर कैरेक्टर टेबल को. अगर आप इस कैरेक्टर टेबल को देखोगे तो पहले इधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे A1, A2, B1, B2. These are generally the irreducible representation of that point group. These are the irreducible representation of that point group. For example, for C2B, there are 4 irreducible representation: A1, A2, B1, B2. Okay, and you can say class for these. You can say class. Okay, and these are your symmetry elements, and these all are your irreducible representations value. ठीक है ना. और next for this, these are your transitions. These are your transitions. We will come over here in Raman spectroscopy, in IR spectroscopy, translational mode, vibrational mode, rotational mode. यहाँ पे हम आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना. तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वाटर मॉलिक्यूल में आपकी ये सब क्या दिए हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल का C2V पॉइंट ग्रुप होता है. तो C2V पॉइंट ग्रुप का, एज यू कैन सी, सो ये आपके क्या दिए गए हैं यहाँ पे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं. तो यहाँ से आप कैरेक्टर टेबल से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो. तो आपने देखा C2V पॉइंट ग्रुप के 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं: A1, A2, B1, B2, A1, A2, B1, B2. अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट आपका यहाँ से एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है. आई होप आप लोगों ने यहाँ से ये अच्छे से नोट कर लिया होगा. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव इट. जरा दिल थाम के बैठो, ठीक है ना. आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली. थोड़ी देर आपको बोर लगेगा, थोड़ी देर आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ और ब्यूटी ऑफ ग्रुप थ्योरी. गॉट इट? ओके. Now I can express the irreducible representation by the, I can represent the reducible representation by the linear combination of irreducible representation. Okay, मैं irreducible representation को reducible representation के linear combination से लिख सकता हूँ, ठीक है ना. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाउ आई कैन राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है. जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, देखो, व्हाट इज द स्टेटमेंट. फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट. द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन can express in the form of can express by, ऐसा लिखो, can express by the linear combination of irreducible रिप्रेजेंटेशन. मीन्स आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही लिख सकते हो. फिर से देखो, अगर आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, क्या लिखना है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो आप उसे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो. कैसे? जैसे कि अभी मैंने C2V पॉइंट ग्रुप के इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताए. क्या होते हैं? A1 होता है, A2 होता है, B1 होते हैं, B2 होता है. मैं अभी C2V के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो C2V में ये होते हैं ना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. तो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हो. कैसे? आप जस्ट मल्टीप्लाई करो N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 N3 B1 प्लस N4. जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है N1 N2 N3 इन द
irreducible representation. So now as you can see, this is nothing but the linear combination. This is nothing but the linear combination of irreducible representations of C to B point group, and you can find by this linear combination the reducible representation of C to B point group. Now you will say me for that this is for a specific representation, that is your C to B point group. What about the other representation? So as you can see, for C3b point group, there are three irreducible representation. A1, A2, E means the reducible representation for C3b point group. That is, there are three irreducible representation: A1, A2, and E. Then you can find this by the linear combination of these N1 A1 plus N2 A2 plus N3 E. Now I will tell you how to calculate N1, N2, N3. Just wait. So for your C4B, there are 1, 2, 3, 4, 5. 5 irreducible representation. There are 5 irreducible: A1, A2, B1, B2, E. So by these you can calculate the reducible representation by this formula. Okay, got it? Okay. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालते हो. अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है अगर ni का. किसका वैल्यू निकालना है? ni. What is ni? ni is your n1, n2, n3. These are your ni's. So how you can calculate? You can calculate by this formula. This is 1 upon h. h is nothing but the order of a group. ओके, मैं ऑर्डर को बताता हूँ. अब आप ऑर्डर कैसे निकालोगे किसी, या ऑर्डर होता क्या है? वैसे ऑर्डर होता क्या है मैंने आपको बताया था, लेकिन कैसे निकालोगे वो बताऊंगा. ये होता है जी आपका टो 3n, दैट इज 3n रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट, दैट इज 3n रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल. यू ऑलरेडी हैव फाइंड इट, राइट? ओके, फाउंड इट, राइट? ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन? मीन्स इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर होगा, जो आपको कैरेक्टर टेबल में वो 1 1 1 1 वो लिखे होते हैं ना, वो होते हैं आपके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर. वो लेना है, ठीक है? देखेंगे कैसे होता है, आपको बताएंगे, ठीक है ना. इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशन you are applying. You can calculate the ni by this formula and then put ni in this formula. You can calculate n1, n2, n3, n4 from this formula, and then you will write it over there. Then you will found all the reducible representation. Got it? Okay, I'll come over there. उससे पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. what is the order. So order of a point group. This एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, order of a point group. ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता सकता हूँ. जनरली ऑर्डर इन सिंपल लैंग्वेज, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने उस मॉलिक्यूल पे लगाए. हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशन यू हैव अप्लाई ऑन दैट मॉलिक्यूल. दैट इज रिप्रेजेंटेड योर ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय H. Okay, let's say you have water molecule. So this have your C2V point group. So and their operations are E, C2, sigma V and sigma V prime. So there are 1, 2, 3, 4. 4 operations are there. So the order is 4 for this molecule. Okay, you can find for all type of point groups. Now, how you can find? How you can tell the exact order of the point group by seeing the point group? Okay, just wait. You can find. Just you have to remember the point group of some elements. Oh, sorry, the order of some elements. Like for CN के लिए जो आपका order होता है, for CN the order is nothing but your N. Means CN के लिए order होता है आपका N.
Okay. What I was telling you that for Cn the order is nothing but your n. Let's say you have C1, so the order of this is 1. For C2, the order of this is C2. For C3, the order is 3. For C4, the order is 4. For C6, the order is 6. Means for Cn, order is nothing but n. Okay. Now, I will find the order of a point group. Just wait a second. Now, what is Dn? I already have tell you that what is Dn. Dn, what is Dn? So Dn is nothing but the combination of Cn and plus n C2 axis which are perpendicular to these Cn. If I have a point group जिसमें क्या है, आपका एक Cn axis है और उस Cn axis के perpendicular NC2 axis है, तो वहां पे आपका इस टोटल कॉम्बिनेशन को हम Dn कहते हैं. क्या कहते हैं? Dn कहते हैं. ओके. अब देखो, अब मैं किसी भी पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालूंगा. अब मैं किसी भी पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर उसे देख के कैसे बताऊंगा, आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा. लेट्स से मुझे पूछा C2b का पॉइंट ग्रुप बताओ. किसका पॉइंट ग्रुप बताओ? C2b का. तो आपको Cn का पॉइंट ग्रुप पता है, मीन्स यहाँ पे आपको C2 का पॉइंट ग्रुप पता है. तो C2 का पॉइंट ग्रुप कितना है? 2 है. C2 का पॉइंट ग्रुप कितना है? 2 है. तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट अगर मैं Cn में, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं Cn में कोई भी चेंज करूंगा, Cn में कोई भी चेंज करूंगा तो उसके लिए 2 का मल्टीप्लाई होगा. कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 का. तो देखो यहाँ ध्यान से, C2 का ऑर्डर कितना है? 2. उसमें एक मैंने चेंज किया कि वहां पे एक V लगाया, तो मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 4. देखो जैसे मैं C2H की बात करूं तो 2 इंटू H का चेंज किया तो मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज अगेन 4. C4V order is 4 multiplied by 2, that is order is 8. Let's say DNH. So come here, what is the order of this? So what is Dn? Dn is the combination of Cn and C2. So what is the change? So for Cn, let's say this is D2H. Okay, let's say this is D2H. For D2 that is nothing but C2 and 2C2. Okay, so for C2, what is the order of for C2? What is the order of C2? C2 का ऑर्डर आपका 2 है, और उसमें एक चीज तो ये क्या मैंने पहले इसमें कि इसको C2 को किसमें चेंज किया? D2 में. तो C2 के लिए ऑर्डर 2 है. ओके, उसे D2 में चेंज करने के लिए उससे 2 से मल्टीप्लाई देंगे, फिर ऐसे लगाने के 2 से मल्टीप्लाई. 2 to the 4 to the, समझ आ रहा है ना? 2 to the 4, 4 to the 8. समझना है? ओके, मैं कह रहा हूं D just wait. Okay, C6V. So for C6 is 6 multiplied by 2, that is 6 to the 12. So you can find easily what is the order. Okay guys, तो आपको ऑर्डर समझ में आया होगा, निकालना है किसी का. जैसे C5H का निकालो तो कोई 5 यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 is 10. तो ऑर्डर आप किसी भी पॉइंट ग्रुप का निकाल सकते हो. ऑर्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ऑर्डर कैसे निकालते हैं. तो आप पोज करके उतार लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ओके. अब हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है. तो मैं पहले एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, दैट इज योर प्रिडीन मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रिडीन. ओके, तो मैंने ले लिया आपका प्रिडीन. दिस इज योर प्रिडीन. ओके, नाउ व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप इन प्रिडीन? दैट इज योर C2V. सो E C2 sigma V and sigma V prime. These are your operations. Now for tau atom, so the number of atoms unshifted in E is 11. For C2 like this, 1 2 3 for sigma V, again 3 for sigma V prime is 11. Then what is tau 3n? Multiply by 3, 11 3 are 33, then minus 3, then 3, then 11. This is tau 3n. So you have find tau atom and tau 3n. Now what are the irreducible representation in C2V? irreducible representation, चिंता मत करो, आपको कैरेक्टर टेबल दी होगी. कैरेक्टर टेबल की स्टार्टिंग में irreducible representation पहली लाइन में होते हैं. तो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, सॉरी B1 होगा एंड B2 होगा. ये 4 irreducible representation होंगे, ठीक है ना? 4 irreducible. तो आपको रिड्यूसिबल निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होगा? N1 A1 प्लस
N2 A2 प्लस N3 B प्लस N4 B4 सॉरी B2, यहाँ तक कर लोगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आप निकालोगे वैल्यूज N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N3 की वैल्यू, सब की वैल्यू। उसके लिए आपको कैरेक्टर टेबल का जरूरत पड़ने वाला है, उसके लिए आपको कैरेक्टर टेबल का जरूरत पड़ने वाला है। मैं N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो उसके लिए आपको C2 पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल का जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने कैरेक्टर टेबल ले लिया है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो देखो गाइस, इसमें अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ऑर्डर। ऑर्डर इज 4 फॉर C2B, C2B दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 चेंजेस 2, so 2 to the 4। ऑर्डर इज 1 बाई ऑर्डर इज 4, so 1 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई किस से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। एक तो आपका 3n कैरेक्टर आएगा दैट इज 33। फॉर्मूला देखो, आपने जो फॉर्मूला लिखा था 3n कैरेक्टर आएगा इनटू आपका आएगा जो यहाँ पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर है। अगर आप देख रहे हो C2B पॉइंट ग्रुप में तो जो पहला कैरेक्टर है वो कितना है, 1 है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा जो 33 वाला जो कैरेक्टर है वो 1 है, तो आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 इनटू कितने ऑपरेशन आपने अप्लाई किए, आपने यहाँ पे कितने ई अप्लाई किए, 1 ई अप्लाई किया तो 1। समझ में आया, ओके। प्लस दैट इज नेक्स्ट इज -3, देन अगेन 1 -3 1 इनटू 1 ऑपरेशन 1, सो -3 into 1 into 1, then plus, then again 3 into 1 into 1, then again plus 11 into 1 into 1। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, बस ये मल्टीप्लाई बाय द कैरेक्टर जो इसमें दिया कैरेक्टर टेबल में इनटू ये। समझ में आया। तो ये आ जाएगा आपका n1 कितना आ जाएगा, जिस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो कितना आ गया 1/4, दिस इज 33 -3 प्लस 3 प्लस 11, okay, 3 से 3 cancel, then 33 plus 11, 33 or 10 43, and then 44 by 4, then this is 11, so n1 is what, 11। got it, okay। now find n2, so for n2 again this n2 के लिए फिर से देखो क्या होगा, ये जो 3n कैरेक्टर है ये मल्टीप्लाई बाई, देखो ध्यान से देखो, n1 के लिए पहले वाला जो A1 है ये वाली रो, N2 के लिए दूसरी वाली रो, N3 के लिए तीसरी वाली रो, N4 के लिए चौथे वाली रो। तो दूसरे वाली रो में आपके 1 -1 -1 -1 -1 पहले थे आपके 1 1 1 1। नेक्स्ट में होंगे आपके, चलो मैं सारे लिख देता हूँ, 1 -1 1 1 -1 1 -1 आपके याद हो जाएंगे जब आप करते रहोगे। तो नेक्स्ट होगा 1 -1 1 ओके। ये आपकी कैरेक्टर टेबल दी गई है। तो नेक्स्ट के लिए आप करोगे n2 के लिए, तो n2 के लिए आप ये वाला लोगे, ठीक है ना। तो 33 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 33, देन अगेन -3 into 1 into 1, then -3, then again 3 into 1 into 1, okay, 3 into -1 into 1, then -3, and 11 into -1 into 1, then -11 or upon your order। so this is nothing but 3 3 6 6 or 11 or 6 is your 17, and 33 minus 17 that is 16 by 4, 16 by 4 means 4, so your n2 is 4। then again find n3, for n3 you will take this one and this one and this one, so 33 into 1 into 1, then again 33, then -3 into -1 into 1 plus 3, then 3 into 1 into 1 plus 3, then 11 into -1 into 1 -11 by 4, ठीक है ना। तो यहाँ से आप n3 जब निकालोगे वो 7 आ जाएगा, निकाल लेना, n3 आ जाएगा आपका। फिर आप निकालोगे n4, लास्ट इज n4 फॉर दिस रो, ओके, दिस रो इन कैरेक्टर टेबल। सो 33 into 1 into 1 33, -3 into -1 into -1 plus 3, 3 into -1 into -1 -3, and then 11 into 1 into 1 plus 11 by 4, -3 से -3 कैंसिल, 33 और 11 दैट इज 44 by 4, 11 अगेन, सो n4 इज अगेन 11। ओके, अब आपके लिए वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो, वैल्यूज आ गई आपके लिए। जो वैल्यूज n1 n2 n3 n4 क्या है वो इसमें रख दो, तो आपका टू रिड्यूसिबल क्या आ जाएगा, n1 इज वॉट 11 a1 प्लस n2 इज वॉट 4 a2
ओके, प्लस N3 इज वॉट 7B1 प्लस N4 इज वॉट 11B2। सो यहाँ से आपका टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, अब देखो इसका रोल क्या है जो आपने ये टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाले हैं। गाइज ये जो आपके टोटल रिप्रेजेंटेशन आए हैं ये टोटल आपके मोड्स है। क्या है? टोटल मोड्स है। इसमें आपको ये आपके टोटल मोड्स है मॉलिक्यूल के, ठीक है ना, कि कितने उसमें वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल जितने भी आपके अब यहाँ से मोड निकलेंगे, वाइब्रेशनल मोड, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, सारे मोड यहाँ से निकलने वाले हैं। मीन्स ये आपका क्या है, आप कह सकते हो ये आपका नींव है, ठीक है ना, ये आपका बेस है टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपको कोई सी भी निकालनी है, रमन निकालना हो, IR निकालना हो, यूवी विजिबल कोई सा भी निकालना हो, तो उसके लिए पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। आपको वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोड कुछ भी निकालने हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, और ये निकालोगे। हम करेंगे आगे सब क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज ये है आपके टोटल मोड्स, ठीक है ना, टोटल मोड्स होता है मॉलिक्यूल। अब यहाँ से मुझे निकालने ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड। ध्यान से देखना, सबसे मैं पहले मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशनल मोड। ध्यान से देखो गाइस, ट्रांसलेशनल मोड क्या होता है? आपके पास आपको कैरेक्टर टेबल दी गई है, कैरेक्टर टेबल आपको दी गई है, उस कैरेक्टर टेबल में देखो ध्यान से, जो बाद में 2 लाइन है, अब मुझे सब मोड निकालने में इनका यूज करना है। इसमें जो आपकी सिंगल XYZ टर्म है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी Z टर्म है, दिख रहा है क्या कैमरे में अच्छे से? तो देखो गाइज ये आपकी Z टर्म है, तो ये ट्रांसलेशनल मोड एक्टिव होगा, मीन्स आपका A1 में ट्रांसलेशनल मोड होगा। फिर देखो X यहाँ पे दिया गया है, B1 भी ट्रांसलेशनल मोड एक्टिव होगा, ठीक है ना, और B2 में भी ट्रांसलेशनल होगा। मीन्स यहाँ पे अगर मैं ट्रांसलेशनल मोड की बात करूँ तो ट्रांसलेशनल मोड यहाँ से क्या क्या आएगा, तो मैं कहता हूँ प्रो ट्रांसलेशनल में आएगा A1, किस में था आपका, आपको कैरेक्टर टेबल देख के ही बताना है, A1 प्लस B1 प्लस B2। कैसे पता लगा ट्रांसलेशनल मोड? ट्रांसलेशनल मोड देखने के लिए फिर से देखो, आप इस 1 2 3 थर्ड ब्लॉक में गए, और थर्ड ब्लॉक में जो आपके सिंगल XYZ लिखे हैं उनके बेसिस पे आप ट्रांसलेशनल बताओगे, क्योंकि ट्रांसलेशनल ओनली XYZ एक्सिस, ट्रांसलेशनल होता क्या है? XYZ एक्सिस में मोशन करना, ठीक है ना, दैट इज ट्रांसलेशनल। तो आपके ट्रांसलेशनल मोड एक्टिव कौन कौन से होंगे? A1 प्लस B1 प्लस B2, ये ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड हो गए। समझ में आया कैसे निकालोगे? ओके, सेकेंड आपको निकालना है रोटेशनल मोड। रोटेशनल मोड ये भी आपका सिंपल है, ये कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके यहाँ पे R टर्म्स होगी, जो आपको R टर्म्स गिवन होगी, गाइज मैं देख रहा हूँ आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं, ओके, R टर्म्स जो दी गई है, जैसे कि A2 में RZ दिया गया है, B1 में RY दिया गया है, और B2 में आपका RX दिया गया है, तो A2 प्लस B1 प्लस B2 ये आपके रोटेशनल मोड एक्टिव है। सो रोटेशनल में कौन कौन से मोड एक्टिव है? रोटेशनल में A2 प्लस B1 प्लस B2, यही थे ना, A2 प्लस B1 प्लस B2, ये आपके रोटेशनल मोड एक्टिव है। तो रोटेशनल मोड एक्टिव निकालने के लिए, रोटेशनल एक्टिव मोड, रोटेशनल मोड निकालने के लिए आप क्या करोगे? कैरेक्टर टेबल में R वाली टर्म्स लोगे, और ट्रांसलेशनल निकालने के कैरेक्टर टेबल में XYZ वाली टर्म लोगे, हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक? ओके, अभी ये हमारे काम आने वाला है, इसे हम देख लेते हैं। टोटल मोड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11A1 प्लस 4A2 प्लस 7B1 प्लस 11B2। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आया? ओके, ई ट्रांसलेशनल समझ में आया, ई रोटेशनल समझ में आया। अब मुझे निकालना है वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड तो कैसे निकालते थे आप ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोड? आप देखते थे आपके 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते थे, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। जो अब ट्रांसलेशनल मोड की बात करते थे, ट्रांसलेशनल मोड अगर मैं कहूँ तो 3 ही होते हैं बस ट्रांसलेशनल मोड, या तो वो X एक्सिस में जा सकता है, या वो Y एक्सिस में जा सकता है, या वो Z एक्सिस में जा सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोड 3 होते हैं दोनों के लिए। अब आप बात करोगे रोटेशनल मोड की, तो रोटेशनल मोड कितने हो सकते हैं? लीनियर वाले में रोटेशनल मोड 2 हो सकते हैं गाइस, और नॉन लीनियर वाले में रोटेशनल मोड 3 हो सकते हैं। कैसे कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो।
लेट्स से आई हैव अ लीनियर मॉलिक्यूल लाइक दिस, सो इसमें या तो ऐसे रोटेशन हो सकता है या ऐसे रोटेशन हो सकता है, इससे ज्यादा कोई रोटेशन नहीं हो सकता, तो दो रोटेशन हो सकता है, तो दो रोटेशनल मोड हो गए। बट नॉन लीनियर में तीन रोटेशनल मोड हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे कैसे रोटेशन कर सकता है, ये एक तो ऐसे रोटेशन कर सकता है नंबर 1, नंबर 2 पे ये ऐसे रोटेशन कर सकता है ऐसे, ठीक है ना। देखो एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, और कैसे रोटेशन कर सकता है सोचो, एक ही ऐसे भी तो रोटेशन कर सकता है, तो ये तीन टाइप से रोटेशन कर सकता है, तो इसके तीन रोटेशनल मोड होते हैं हमेशा, आपने ये पढ़ा होगा पहले, ठीक है ना। और जब आप वाइब्रेशनल मोड निकालते थे तो क्या करते थे, आपके टोटल मोड होते हैं 3n, क्योंकि 3 एक्सिस होते हैं ना, और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 3n टोटल मोड्स होते थे, उसमें से आप क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के और घटा देते थे, तो आपके वाइब्रेशनल मोड लीनियर के केस में 3n-5 आते थे, और नॉन लीनियर के केस में 3n-6 आते थे, ठीक है ना। सेम काम आपको यहाँ करना है। आपको क्या करना है, वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए, तो वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए जो आपके पास टोटल मोड है उसमें से आपको इन दोनों को जोड़ के घटा देना है, टो ट्रांस प्लस टो प्रो, आपको इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से घटा देना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, वाइब्रेशनल मोड। ओके, मैं वाइब्रेशनल मोड निकालने जा रहा हूँ। चलो क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें से घटा दोगे। अगर आप देखो पहले 11A1 है, यहाँ पे A1 का 1 है और यहाँ पे A1 नहीं है, तो 11A1 में से A1 गया, सो 10A1, कोई दिक्कत नहीं। फिर बचा आपका A2, क्या बचा, A2 4A2 है, A2 कितना है 1, तो बचा प्लस 3A2, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर B1, सो B1 7B1 एंड B1 प्लस कितना बचा 2B1, ठीक है ना। 7B1 से 2B1 5B1 प्लस 11B2 में से 2B2 गया 9B2, तो ये आ जाएंगे गाइस आपके वाइब्रेशनल मोड, ये क्या आ जाएंगे आपके वाइब्रेशनल मोड। अच्छे से देख लो आप, तो ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड। ठीक है ना, कर लोगे। अब देखो जो यहाँ से वाइब्रेशनल मोड आएंगे, अब आपको पता है वाइब्रेशनल मोड में आपके IR एक्टिव मोड भी होंगे और आपके रमन मोड भी होंगे, ठीक है ना। IR मोड भी होंगे और रमन मोड भी होंगे। अब आप IR मोड कैसे निकालोगे और रमन मोड कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, ट्रांसलेशनल कैसे निकाले, रोटेशनल कैसे निकाले, वाइब्रेशनल कैसे निकाले, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है आप IR कैसे निकालोगे। फॉर IR अगेन, IR के लिए फिर से क्या करना है, ध्यान से देखो, IR में फिर से आपको XY वाली टर्म लेनी है, जिसमें XYZ टर्म है, यानी कि आपको A1 प्लस B1 प्लस B2, तो आपको IR एक्टिव, अगर मैं टो IR की बात करूं तो वो होगा A1 प्लस B1 प्लस B2, राइट। ओके, और अगर मैं बात करूं रमन, अगर आपको अब रमन निकालना है, तो रमन के लिए सिंपल है, आपको क्वाड्रेटिक टर्म्स लेनी है। कौन सी टर्म लेनी है, क्वाड्रेटिक टर्म। अगर गाइज आप यहाँ से देख रहे होगे, इधर क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म x2 y2 z2, ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, XY ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये सब क्वाड्रेटिक टर्म है। तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, ये आपके रमन मोड होंगे, रमन एक्टिव मोड, ये आपके IR एक्टिव मोड होंगे। अब देख लेते हैं क्या इसमें प्रेजेंट है रमन एक्टिव और IR एक्टिव मोड। A1 भी प्रेजेंट है, A2 भी प्रेजेंट है, B1 भी प्रेजेंट है, B2 भी प्रेजेंट है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। अगर कहीं पे ऐसे होता है, लेट्स से आपके पास वाइब्रेशनल मोड में आ गया A1 2A1 प्लस B1 प्लस 3B2, ये आ गया। लेकिन आपके जो रमन IR मोड में आप देख लो A1 भी है, B1 भी है, B2, तो ये तो ठीक है। इसमें आपका A1 A2 B1 B2, लेकिन A2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे A2 प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके वाइब्रेशनल में ही A2 प्रेजेंट नहीं है और यहाँ A2 आ रहा है, तो हम यहाँ से इसे हटा देंगे, क्योंकि अगर वाइब्रेशनल में नहीं है तो रमन में कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्टिव मोड्स ही आएंगे। ओके, अब हम और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको
और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेके कर देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, आपका फेवरेट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल लेके मैं कर देता हूँ। ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल C2 की पॉइंट ग्रुप होगा, ध्यान से देखो C2 की पॉइंट ग्रुप EC2 सिग्मा वी प्राइम। अनशिफ्टेड एटम, तो एटम अनशिफ्टेड एटम E में 3, C2 में 1, सिग्मा वी में 1, सिग्मा वी प्राइम में 3, तो 3n, 3 3 जा 9, -1 1 3, ये होगा आपका तो 3n। ओके, इससे बाद में क्या कैलकुलेट करना है आपको? इससे बाद में आपको कैलकुलेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा टो रिड्यूसिबल इज इक्वल टू 1 बाई, सॉरी ऑर्डर यहाँ पे मतलब n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, ये होगा। कैरेक्टर टेबल आपकी क्या है? कैरेक्टर टेबल आपने लिखी थी, कैरेक्टर टेबल है 1 1 1 1, और कोई जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आप जाएगी 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1, आई थिंक ये है, हाँ ये है, और 1 -1 -1 1, ये है। ओके, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा प्लस n3 b2, दिस इज b1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होगा। आपको n1 निकालना है, तो n1 में क्या करोगे? अगेन n1 में 9 इंटू 1 इंटू 1, 9 इंटू 1 इंटू 1, 9 1 नंबर 9। ओके, और वो ऑर्डर भी हो जाएगा 1/4 देन 9 प्लस नेक्स्ट -1 इंटू 1 इंटू 1 -1, देन 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, देन 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3, -1 से -1 कैंसिल, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 by 4 that is 3, n1 is 3। ओके, n2 निकालो 1/4, 9 1 जा 1, 9 oh sorry 9 1 into 1 9, then -1 into 1 into 1 -1, then 1 into 1 into -1 -1, then 3 into 1 into -1 -3, so that is 3 और 1 4, 3 और 4 और 1 5, 9 में से 4 गए, 9 में से 5/4, 4/4, that is 1, n2 is 1, now n3 is what? 1/4, 9 into 1 into 1, 9, 1 into -1, then plus 1, and then plus 1, then -3। okay, 9 10 11, 11 में से 3 घटा दो, 11 10 9 8, तो n2 आ जाएगा 8/4 मीन्स 2, और आप n3 भी ऐसे निकालोगे 1/4, n4 भी ऐसे निकालोगे 1/4 इंटू 9 1 1, 9 प्लस 1 -1 प्लस 3। ओके, देन 9 और 3 अगेन 12, दैट इज 3, 4 पहला वैल्यू है 3 1 2 3, 3 1 2 3 मीन्स आपका टू रिड्यूसिबल टोटल रिप्रेजेंटेशन कितने आ गए? टोटल 3a1 प्लस a2 प्लस 2b1 प्लस 3b2, ये आपके टोटल आ गए। ठीक है ना, टोटल मोड कितने आ गए? टोटल मोड कितने आ गए? अब आपको निकालना है ट्रांसलेशनल, अगेन ट्रांसलेशनल के लिए आप देखोगे XYZ, तो ट्रांसलेशनल ओनली यूज होने वाला है इसका। ठीक है ना, ट्रांसलेशनल आपको देखना है, ट्रांसलेशनल किसमें? A1 B1 B2, A1 प्लस B1 प्लस B2, तो रोटेशनल देखना है आपको A2 प्लस B1 प्लस B2। ओके, तो वाइब्रेशनल दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, 3a1 2a1, ओके, a2 एंड देन a2 कैंसिल हो जाएगा, a2 में से a2 गया 0। ठीक है ना, 2b1 एंड 2b1 0, और 3b2 और -2b2 प्लस b2, सो these are your vibrational mode। now calculate IR mode। for IR mode again XYZ, so A1 plus B1 plus B2। for Raman mode square terms means A1 plus B1 plus B2, sorry plus A2 भी आएगा, A1 plus A2 plus B1 plus B2। now as you can see in vibrational mode there is only A1 and B2, and here as you can see B1 also exists, so B1 cancel out and A2 भी cancel out and B1 cancel out, so Raman IR active mode A1 plus B2 and this is A1 plus। ठीक है ना, तो IR एक्टिव भी यही है और रमन एक्टिव भी यही है, और आपको पता है कि जो आपके IR होते हैं वो आपका रमन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो आपने पढ़ा था। ओके, आपको ट्राई करना है डिफरेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आप क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है ना,
आप क्वेश्चन कर लेना। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते। दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। फिर आप कहोगे कि C2D का करा दे, C3D का नहीं कराया। मैं एक NH3 का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? NH3। ओके, बाहर डॉग भौंकने लगे हैं, देख लेते हैं जी। NH3 पॉइंट ग्रुप होता है C3D। कैरेक्टर टेबल दी हुई है जी, कैरेक्टर टेबल पेपर में दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैरेक्टर टेबल आपको दी है। ओके, तो आप फिर से देखो C3V, आपको याद भी नहीं करना कौन कौन से एलिमेंट लगे थे, वैसे आपको पता होना चाहिए। E2C3 3 सिग्मा V, ये होता है जी 3 सिग्मा V। जब आप अप्लाई करोगे NH3 के ऊपर E अप्लाई करोगे तो 3 और 1 4, 4 के 4 आइटम। जब आप C3 अप्लाई करोगे, देखो N, यहां से आप C3 अप्लाई करोगे ना, C3 अप्लाई करोगे तो एक एटम अनचेंज होगा। सिग्मा V अप्लाई करोगे तो सिग्मा V ऐसे अप्लाई करते हो, 2 एटम अनचेंज होंगे, ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 2, 12 2 0, समझ में है ना। ओके, नाउ for formula, what is reduction formula? What is reduction formula? Formula is N1 A1 plus N2 A2 plus N3 E, N3 E. Okay, find the value of N1 N2 and N3। आप फाइंड कर लेना, मैं फाइंड करके रखी है मैंने, ये वैल्यूज है आपका 3 ये, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला क्या रहेगा? टो रिडक्शन, टोटल मोड्स कितने आ जाएंगे? 3A1 प्लस A2 प्लस 2E, ये मोड आ जाएंगे। अब मैं ट्रांसलेशनल रोटेशनल निकाल लेता हूँ, मैं ट्रांसलेशनल निकालता हूँ। तो ट्रांसलेशनल के लिए x वाली और y वाली टर्म, सो x वाली टर्म और y वाली टर्म और z वाली टर्म, सो A1 प्लस 2E आ जाएगा, 2E आ जाएगा क्योंकि x और y E में ही है, ठीक है ना। तो रोटेशनल आप निकालोगे, रोटेशनल के लिए R वाली टर्म फिर से A2 प्लस 2E। ओके, अब आप निकालोगे वाइब्रेशनल के लिए आप क्या करोगे? सॉरी, एक ही लेंगे ना। ओके, वाइब्रेशनल के लिए आप क्या करोगे? टोटल में से घटा दोगे, टोटल में से डिवाइड करोगे। ओके, 3A1 माइनस A1 2A1, A2 माइनस A2 0, 2E माइनस 2E 0। सो ये आएगा वाइब्रेशनल मोड। यहाँ से आप रोटेशनल रमन सब निकाल सकते हो जाएगा, ठीक है ना। IR और रमन निकाल लेना, हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका कि कैसे ट्रांसलेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, रोटेशनल मोड निकालते हैं, उसमें IR और रमन मोड निकालते हैं, ठीक है ना। ये सब आप कर लेना अच्छे से। ओके, मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।